Now friends, we start question number 4 of exercise 2.5. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले यही देखना है कि आईटीडीज में कौन सी यूज हो रही है. हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. यहां पे a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर. सो वी यूज हियर आईडेंटिटी होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b प्लस c. नाउ यूजिंग आईडेंटिटी whole square of a plus b plus c is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. Now इस एंटिटी का यूज करना है हमें और a b c की पहचान करनी है. here a is equal to x and b is equal to 2y and c is equal to that is 4z. Put these values in the identity. इसे पुट कर लीजिए. सो x प्लस a यानी a की जगह हमने x रख दिया, b की जगह हम रखेंगे 2y प्लस c की जगह हम रखेंगे 4z. होल स्क्वायर ऑफ दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2y का स्क्वायर प्लस 2 4z का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर plus 2ab. 2 into a. What is a? That is x into b. That is 2y plus 2bc. 2 into b की वैल्यू रखिए 2y and 2bc. 4z plus 2ca. 2 into c की वैल्यू 4z into में x. ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने एक्सपेंड करके लिखना है. इसमें देखिए एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 4y स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर 16z स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई करेंगे हम इनकी. दैट इज 2 2 जा 4xy प्लस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 2 जा 8 8 2 जा 16yz प्लस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आप. दैट इज 4 2 जा 8xz. So this one is the expanded form. So we can write it as whole square of x plus 2y plus 4z is equal to x square plus 4y square plus 16z square plus 4xy plus 16yz plus 8xz. Now we start at the second part. Here in the second part we have using the same identity. So we recognize what is the value of a. Here a this one is the 2x minus y plus z. Here a is equal to हमारे पास a की वैल्यू 2x है and b is equal to minus y. नेगेटिव है तो साइन माइनस का लगा देंगे. c is equal to z. So use the same identity we use in question number first part of the question number 4. So a, what is the value a? That is 2x plus b. b की वैल्यू हमारे पास है माइनस y प्लस माइनस यहां माइनस आ जाएगा प्लस c दैट इज z इज इक्वल टू a स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी माइनस y का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी z स्क्वायर प्लस 2 इंटू a दैट इज 2x इंटू b माइनस y प्लस 2 इंटू bc. 2bc की जगह हम माइनस y इंटू z प्लस 2ca. c की वैल्यू हमारे पास है z और a की वैल्यू हमारे पास है 2x. इस एंटिटी का यूज करना है. सिर्फ एंटिटी याद है अगर आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं आती इन क्वेश्चन से. नाउ स्क्वायर बोलना है आपको. 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर. यहां देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो गया, बाहर भी प्लस है. तो प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस इट इज माइनस 2 2 जा 4xy. नाउ इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम प्लस माइनस माइनस 2yz एंड इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4xz. So we can write it as whole square of
2x minus y plus z is equal to 4x square plus y square plus z square minus 4xy minus 2yz plus 4xz. Now this one is the expanded form, students. हमने expanded form में इसको कर दिया है. Now students, we start third part of question number 4. Using the identity whole square of a plus b plus c is equal to a square plus b square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. Now, third part, using identity whole square of a plus b plus c, a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. Here a is equal to minus 2x, b is equal to 3y and c is equal to 2z. Now put these values in this identity. So a is equal to minus 2x plus 3y plus 2z is equal to a square and minus 2x square plus 3y square plus 2z whole square plus 2 into a, that is minus 2x into b, 3y plus 2 a भी हो गया. अब bc, b की वैल्यू 3y, c की वैल्यू है 2z प्लस 2ca, c की वैल्यू हमारे पास है 2z into a की वैल्यू minus 2x. Now solve this. Whole square of this is 4x square plus 3 का स्क्वायर करेंगे 9y square प्लस इनकी सॉल्व करेंगे 2 का स्क्वायर 4z स्क्वायर, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम प्लस माइनस माइनस दैट इज 2 to 4xy प्लस 2 3 6 2 12yz प्लस माइनस माइनस 2 4 2 8xz. So this is the expanded form. Here we can write it as minus whole square of minus 2x plus 3y plus 2z is equal to 4x square plus 9y square plus 4z square minus 4xy plus 12yz minus 8xz. So this one is the solution of part 3. Now we start its fourth part here. It is 3a square minus 7b minus c. स्टूडेंट्स a की वैल्यू की पहचान हमारे पास हो गई. हम आइडेंटिटी यूज करेंगे. यूजिंग आइडेंटिटी होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर plus 2bc plus 2ca plus 2ab plus 2bc plus 2ca. Here a is equal to 3a, b is equal to that is minus 7b and c is equal to minus c. So put these values in this identity. Here we write 3a plus b की जगह हम लिखेंगे minus 7b minus c whole square is equal to a square यानी 3a का whole square plus b का square यानी minus 7b का whole square plus c square, c की जगह c है हमारे पास plus 2 into a. What is a? It is 3a into b, that is minus 7b plus 2 into b minus 3b 7b into minus c.
नाउ 2bc हो गया, 2ca लीजिए अब, 2 इंटू सी की वैल्यू माइनस सी इंटू ए की वैल्यू 3a। हमने वैल्यूज पुट करनी है। नाउ सॉल्व दिस, इट इज 9a स्क्वायर प्लस इसका माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस का हो जाएगा 49b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 to the 6, 6 and the 42 AB। नाउ इसकी मल्टीप्लाई होगी, अब इसकी मल्टीप्लाई करिए आप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 to the 14 BC प्लस माइनस माइनस 3 to the 6 AC। So this one is the expanded form of part 4. Now we start its fifth part here using identity all square of a plus b plus c is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. Put the values of a, b, c here. A is equal to minus 2x, b is equal to 5y and c is equal to minus 3z. Put these values in this identity. Minus 2x plus 5y minus 3z, c की वैल्यू नेगेटिव है, सो माइनस 3z होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, यानी माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 5y का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 3z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 into a that is minus 2x into b that is 5y plus 2ca, 2 into c the value of bc, 2ab हो गया, अभी 2bc की वैल्यू रखनी है हमें, so b is 5y and c is minus 3z plus 2ca minus 3z into a that is minus 2x. So solve this now, it is 4x square plus 5 का स्क्वायर करेंगे 25y स्क्वायर प्लस ये माइनस का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9z स्क्वायर। नाउ मल्टीप्लाई करिए, 5 to the 10, 10 to the 20, so it is minus 20xy and now multiply these, it is also plus minus minus 3 5 the 15, 15 to the 30 yz and मल्टीप्लाई करिए इनकी, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 to the 6, 6 to the 12 zx. Now this one is the expanded form of part 5. Now we write here part 6. 6 में आपको देखिए ए, अभी तो आइडेंटिटी लगाएंगे हम, होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. Now here the value of a is 1/4, 1/4a, b is equal to minus 1/2b and c is equal to 1. Put these values of a, b, c in the identity. Now we write it as 1/4a प्लस b की वैल्यू रखेंगे, माइनस हो जाएगा प्लस माइनस हाफ b प्लस 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर 1/4 का 4a का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि माइनस 1/2b का होल स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a दैट इज 1/4a into b that is 1 minus 1/2b. Now plus 2ca 2bc, here 2ab हो गया, अब 2bc, 2 into b की वैल्यू लिखेंगे माइनस 1/2b into c की वैल्यू 1 plus 2 into c, what is the value of c is 1 and 2ca, a is 1/4a. Solve this now. सबसे पहले कैंसिल होता है तो कैंसिल करिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, here 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड 2 से इसको कैंसिल करेंगे, ये 2 आ जाएगा यहाँ पे कट के, तो हमारा आ जाएगा ये, सॉल्व करिए इसका स्क्वायर 1/16 a स्क्वायर प्लस
1/4 b square plus c square, and it is plus minus ab/4, and next here plus minus, and it is minus b. Now it is all are positive, so a/2 plus 1/2a. So this one is the solution of last part. Now it is question number 4. सॉरी, इन दिस क्वेश्चन द 6th पार्ट में आप देखेंगे स्टूडेंट्स, यहां बी सी की वैल्यू 1 है, सो पुट हियर a square plus b square, so there is a correction here, it must be 1, and now 2ab, 2bc, 2ca, everything is okay. Now we write it as whole square of 1, that is 1. Now this is the correction, so note this. Now we start the next question. Now we start question number 5, most important question. सबसे ज्यादा गलतियां इसी में होती हैं बच्चों से, और कहां गलतियां होंगी मैं आपको जरूर पॉइंट आउट करूंगा, वो जो चीजें आपको बताऊंगा कि बच्चे जनरली कहां गलतियां करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स पहचान करिए आइडेंटिटी की, कि यहां कौन सी आइडेंटिटी गलती है। सो वी डू द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। हियर इट इज नॉट होल स्क्वायर, चेंज देम इन होल स्क्वायर। आप क्लियरली देख रहे हैं a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2c। तो यहां पे आपको a b c की पहचान करनी है, सो इट इज होल स्क्वायर ऑफ 2x, राइट इट एज होल स्क्वायर ऑफ 2x, एंड नाउ वी राइट 9y स्क्वायर एज 3y का होल स्क्वायर। नाउ 14z को हम लिखते हैं 4z का होल स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो पहली चीज है आपको कि आप पहले एबीसी की पहचान करिए, जो आइडेंटिटी हम यूज करने जा रहे हैं वो लिखिए। नाउ यूजिंग आइडेंटिटी दैट इज होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b प्लस c। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है हमें, फैक्टराइज की फॉर्म में नहीं लिखना है, सॉरी एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है हमें और हमें इसको फैक्टराइज करके लिखना है। तो फैक्टराइज करने के लिए पहले एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे हम। हियर वी राइट इट एज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, एंड इट इज इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b प्लस c। देखिए स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी वही यूज हो रही है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं पे भी आपको लगता है कि वो फैक्टराइज करना है या एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको करना है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म तो हमें दे रखी है यहाँ पे, हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म पहले लिखेंगे आइडेंटिटी में और फैक्टराइज वाले बाद में लिखेंगे। नाउ पहचान हमने कर लिया एबीसी की, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आएगी अब इसमें, क्योंकि आइडेंटिटी में सारे साइन हमारे पॉजिटिव है। आप देख रहे हैं कि इसमें कोई भी साइन नेगेटिव नहीं है, बट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हम नेगेटिव साइन भी देख रहे हैं। और वो नेगेटिव साइन किसके कारण है? जैसे कई बार बच्चे गेम करते हैं और चोर को ढूंढना, चोर को पकड़िए, कैसे आप चोर को पकड़ेंगे उसमें? तो यहां पे चोर का मेरा मतलब नेगेटिव से है कि नेगेटिव किसके कारण आ रहा है, इसकी पहचान आपको करनी पड़ेगी कि वो एक्स नेगेटिव है, ये टर्म नेगेटिव है, ये है या ये, क्योंकि ये जो नेगेटिव टर्म्स आ रही हैं दीज आर ड्यू टू 2x 3y और 4z, इनके कारण है। तो देखिए हम स्टूडेंट्स पहले देखते हैं x और y, यानी x और y इन दोनों में आ रहा है। x और y आप देख रहे हैं दोनों में आ रहा है, इसमें x है और इसमें y है, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये है कि दोनों टर्म पॉजिटिव है। इसका मतलब चोर कौन है? यहां पे आप इसके साथ साइन माइनस करिए, ये चोर है, पकड़ा गया 4z, सो इट इज नेगेटिव। ये नेगेटिव है। देखिए z जहां जहां भी z आएगा आप चेक करिए, इसमें xy है, ये पॉजिटिव हो गया। अब इसमें z है और इसमें z है, तो दोनों वैल्यूज नेगेटिव आ रही है। तो यहां पे आपको चोर को ढूंढने का मतलब है कि आप नेगेटिव साइन किसके कारण आ रहा है उसको ढूंढिए। हमने फाइंड आउट कर लिया है कि वो 4z माइनस का है, इसके कारण ये दोनों ही वैल्यूज नेगेटिव आ रही है।
Now put the values in this identity. So it is whole square of 2x प्लस b की वैल्यू रखिए यहाँ पे। चलिए पहले बात लिख लीजिए आप अलग अलग। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, a इज इक्वल टू 2x एंड b इज इक्वल टू 3y एंड c इज इक्वल टू दैट इज नेगेटिव। अभी हमने इसको ढूंढा है कि नेगेटिव कौन सा आना चाहिए, हमने इसको सर्च किया। अब वैल्यूज रखनी है जस्ट बस। इट इज 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी कि -4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a दैट इज 2x इंटू b दैट इज 3y टू ab हो गया। नाउ टू bc, b इज 3y एंड c इज -4z प्लस 2ca, here c इज -4z एंड a इज 2x। देखिए स्टूडेंट्स, हमें यहां से नहीं पता चलता है, सारे की वैल्यू हम देख रहे हैं, तीनों में ही सारी वैल्यू पॉजिटिव आ गई। सो नेगेटिव साइन अगर ढूंढना पड़ता है क्योंकि स्क्वायर हो गया था इनका, और स्क्वायर होने के बाद माइनस है तो वो भी प्लस हो जाता है। अब अगर आपको चोर को पकड़ना है, नेगेटिव को ढूंढना है, तो हम इन टर्म्स से पता लगा सकते हैं। ठीक है, एक्स और वाई वाली प्लस की आ गई, इसका मतलब दोनों प्लस के हैं, तो इसका मतलब जेड आपका नेगेटिव होगा। सॉल्व दिस नाउ एंड दैट इज इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ a की वैल्यू 2x प्लस 3y माइनस 4z। सो स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लीजिए। आप 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 3 या 9y स्क्वायर, इसका स्क्वायर देखिए अगर नेगेटिव है साइन और इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। तो यहां से हमें नहीं पता चल पाता है कि किसके कारण नेगेटिव आ रहा है। नाउ मल्टीप्लाई दिस 2 to the 4, 4 to the 12 xy। Now multiply these positive and negative, that makes negative 2 3 the 6, 6 4 the 24 yz, so it is 24 yz and next is इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 4 the 8, 8 to the 16 that is minus 16xz and it is equal to whole square of 2x plus 3y minus 4z का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, देखिए आपको जो एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी थी ये एज इट इज सेम आ गया हमारा, और ये हम देख रहे हैं कि इसके बराबर है, यानी लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है। ये फॉर्म हमें दे रखी थी, हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में दिखना है तो ये होल स्क्वायर इसके बराबर होगा, और इसको हम स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे 2x plus 3y minus 4z। Now we can write it as 2x plus 3y minus 4z, 2x plus 3y minus 4z. So these are the factors of this extended form of part 1. Now we start part 2. इसमें भी हम वैसे ही पहले होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। देखो यहां से हमें पता नहीं चल रहा है कि नेगेटिव किस कारण से आ रहा है। क्यों नहीं पता चल पा रहा है? क्योंकि ये स्क्वायर करते हैं हम, और स्क्वायर करते टाइम नेगेटिव भी हो तो पॉजिटिव हो जाता है। तो सबसे पहले इसका होल स्क्वायर है, वी कैन राइट √2 एज, अगर मैं √2 का होल स्क्वायर लिखूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी यहां पे 2 किसका स्क्वायर है, √2 का, तो इसको मैं लिखूंगा √2x का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ y का होल स्क्वायर प्लस, अब 8 को हम लिखेंगे, 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर √8 लिखें हम, क्योंकि ये 8 √8 का होल स्क्वायर है, और √8 को हम लिख सकते हैं इस तरह से, √8 इसके ट्राइफैक्टर बनाए हमने, ये पेयर पूरा हो गया, ये जेल तोड़ के बाहर भाग जाएगा आपका, तो इसको पेयर बन के इस पेयरों की जेल से अगर बाहर निकलना है आपको तो पेयर से बाहर निकल सकते हैं। एक शहीद हो जाएगा बेचारा, एक मारा जाएगा और एक आजाद हो जाएगा। तो देखिए यहां पेयर हमारा बन गया है 2 का, पेयर में से दोनों भागेंगे जेल तोड़ के, और इसमें से एक शहीद हो जाएगा, ये मारा जाएगा बेचारा, और ये बाहर आ जाएगा, आजाद हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट की जेल को तोड़ के बाहर आ जाता है। अब हमारे पास यहां सिर्फ √2 बचा, अकेला रह गया तो ये जेल में रहेगा, क्योंकि इस जेल को तोड़ना है तो पेयर्स में भाग सकते हैं, और उसमें से एक मारा जाएगा और एक आजाद हो जाएगा। तो नाउ वी कैन राइट इट एज 2 √2 z
का होल स्क्वायर. So this is these are the values of A, B, C. ठीक है, होल स्क्वायर में हमने कन्वर्ट कर दिया है. अब हम एज इट इज लिख देते हैं. फिर हम चोर को पकड़ेंगे. कैसे ढूंढेंगे? 4√2yz माइनस 8xz. अब पकड़ना है, ढूंढना है किसको? माइनस का साइन किसके साथ आएगा? क्योंकि देखिए आप, ये सारी वैल्यूज हम पॉजिटिव देख रहे हैं और माइनस किससे हो रहा है? यहां से देखिए पॉजिटिव कौन सा है? ये पॉजिटिव है. इसका मतलब ये है y और z या तो दोनों नेगेटिव हो सकती है या दोनों पॉजिटिव हो सकती हैं. तो नेगेटिव वाले दो केस लेने पड़ेंगे अदरवाइज. या फिर आप ये कर सकते हैं कि y और z को पॉजिटिव ले लें. इसका मतलब कौन बचा? x. x नेगेटिव है, पकड़ा गया. यहां से हमारे पास किसके कारण नेगेटिव आया है वो हमने पहचान कर लिए. तो ये आपका नेगेटिव हो गया है. हमने चोर को ढूंढ लिया है. दिस वन इज नेगेटिव साइन. नाउ हियर A is equal to minus under root 2x, B is equal to y, and C is equal to 2 root 2z. Now put these values in identity. Using the identity, हमारी using identity कौन सी है? It is a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca, and that is equal to whole square of a plus b plus c. Now put these values in this identity. a की जगह हम रखेंगे माइनस रूट 2x का होल स्क्वायर प्लस b की जगह हम रखेंगे y एंड c की जगह हम रखेंगे 2 रूट 2z प्लस 2bc. ab को लिखेंगे 2 into a. What is a? That is minus root 2x into b. That is the value of b is y. 2ab plus 2bc. What is the value of b? That is y into c की वैल्यू देखिए 2 root 2z. Now आगे हम लिखेंगे प्लस 2ca. 2 इंटू सी की वैल्यू देखिए 2 रूट 2z इंटू ए की वैल्यू है माइनस रूट 2x. दैट इज इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ ए. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? दैट इज माइनस रूट 2x प्लस y प्लस सी की वैल्यू होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी प्लस सी. सी इज 2 रूट 2z. 2 रूट 2z का होल स्क्वायर कर देंगे हम यहाँ पे. तो स्टूडेंट्स ये हमारा होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया एक्सपेंडेड फॉर्म को. एंड एबीसी की पहचान हो गई. अब इसका स्क्वायर खोल देंगे. माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा. ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 इंटू रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो आपका 2 आ जाएगा एंड जेड का भी स्क्वायर हो जाएगा. इन तीनों का स्क्वायर होगा. 2 का स्क्वायर क्या है? 4. रूट 2 का स्क्वायर 2 आ गया और जेड का स्क्वायर एज इट इज 4 इंटू 2 इंटू जेड स्क्वायर प्लस. अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं. प्लस माइनस माइनस तो साइन इज नेगेटिव एंड नाउ 2 रूट 2 दैट इज एक्स वाई. एंड नाउ मल्टीप्लाई इनकी करते हैं हम. 2 2 जा 4 प्लस 4 रूट 2 वाई जेड. एंड नाउ इनकी मल्टीप्लाई करेंगे इनकी. तो देखिए ध्यान से प्लस माइनस पहले साइन को चेक करना है. 2 2 जा 4 रूट 2 भी करोगे 2 आ जाएगा. 4 2 जा 8 दैट इज एक्स जेड. एंड इट इज इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ ए यानी माइनस अंडर रूट 2x प्लस बी यानी y प्लस सी 2 रूट 2z का होल स्क्वायर. नाउ स्टूडेंट्स मैच करिए. आपकी जो एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी थी वो क्या है? एज इट इज 2x स्क्वायर या y स्क्वायर 8z स्क्वायर. इसको सॉल्व कर लीजिए. 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4 2 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2xy प्लस 4 रूट 2yz माइनस 8xz
इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2 जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी ये सेम आ गया, देखिए हमारा एज इट इज हमें जो क्वेश्चन में दे रखा था वो हमारा सॉल्व हो गया। एज इट इज हमने वैल्यूज पुट करके देखी तो वही आ गई है ये वैल्यूज, और ये वैल्यूज किसके बराबर है? नाउ लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, सो वी कैन राइट दिस एक्सपेंडेड फॉर्म एज माइनस अंडर रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2 जेड का होल स्क्वायर। और 2 बार लिखेंगे तो ये फैक्टर्स हो गए हमारे, माइनस अंडर रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2 जेड। सो दिस इज द सॉल्यूशन। मेन यहां पे माइनस के साइन को ढूंढना है आपने, सारे पॉजिटिव है फिर तो कोई दिक्कत आती ही नहीं है, बट अगर कहीं भी नेगेटिव साइन आ गया तो किसके कारण आ रहा है उसको आपने पकड़ना है, और ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा, कोई इसमें मुश्किल नहीं आएगी। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6, that is based on the whole cube of a plus b और whole cube of a minus b। 2 एंटिटीज का यूज होगा इसमें, वो या तो whole cube of a plus b वाली एंटिटी लगेगी। देखिए क्यूब है, यहां से हम पहचान कर सकते हैं कौन सी एंटिटी लगेगी। हम फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। सो दिस वन इज आवर फर्स्ट पार्ट। क्या कौन सी एंटिटी यूज होगी? a प्लस बी, यानी पॉजिटिव साइन है तो a प्लस बी का होल क्यूब वाली एंटिटी यूज होगी। तो यहां पे लिख लीजिए यूजिंग आईटी, दैट इज होल क्यूब ऑफ a प्लस बी। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है हमने इसको, नो एक्सपेंड करके लिखना है। तो पहले आप क्यूब वाला पोर्शन लिखेंगे, नाउ एक्सपेंड करेंगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। नाउ हियर a इज इक्वल टू, क्लियरली हमको पता चल रहा है यहाँ पे a की वैल्यू 2x है एंड b इज इक्वल टू 1। सो पुट दीज वैल्यूज इन दिस एंटिटी। a that is 2x plus 1 is equal to a क्यूब, यानी 2x का क्यूब कर दीजिए प्लस b का क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a that is 2x इंटू b यानी 1। सो 2x प्लस 1। हमने सिर्फ वैल्यूज रख दी है इस आइडेंटिटी में a और b की वैल्यूज। नाउ सॉल्व दिस, इट इज 4 2 to 4, क्यूब करेंगे हम इसका, 2 का क्यूब करेंगे पहले, दैट इज 4 to 8, 2 to 4 to 8 x क्यूब, दोनों का क्यूब होगा। देखिए इस क्यूब में ब्रैकेट के अंदर है, यानी एक ही परिवार के मेंबर्स हैं। ठीक है, मान लीजिए परिवार में भाई और बहन दोनों हैं, जो फादर का सरनेम है यूज करते हैं जनरली जैसे, तो दोनों के पीछे वो सरनेम यूज होगा। तो यहाँ जो क्यूब है ये, इस क्यूब में हिस्सा इन दोनों का, 2 का भी हिस्सा है इसमें और x का भी पार्ट है। तो हम 2 का क्यूब करेंगे, नेगेट हो जाएगा, एंड नेक्स्ट x क्यूब प्लस 1। नाउ मल्टीप्लाई दिस, इट इज 3 to x, 6x इंटू 2x प्लस 1। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, 8x क्यूब प्लस 1 प्लस, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों भी, 6 to 12 x स्क्वायर प्लस, अब 6 1 6, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस वन इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ फर्स्ट पार्ट। नाउ वी स्टार्ट एट सेकेंड पार्ट। यहां भी आपको आइडेंटिटी लगानी है, होल क्यूब ऑफ a माइनस बी। क्लियर दिखाई दे रहा है, यहां से बीच में माइनस है, सो हम यहां पे 2a माइनस 3b का होल क्यूब यूजिंग होल क्यूब ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। इस चैप्टर में आइडेंटिटीज का बहुत बड़ा रोल है। अगर बिल्कुल आपने क्रैम करना है, रट्टा मारना है, तो आप आइडेंटिटीज को रखिए, क्वेश्चंस को कभी रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आइडेंटिटीज अगर लर्न हो गई है तो आपके लिए सब कुछ आसान होगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास है, हियर a इज इक्वल टू 2a एंड b इज इक्वल टू माइनस 3b। पुट दीज वैल्यूज इन दिस आइडेंटिटी। सो 2a माइनस 3b का होल क्यूब, हियर नो नीड टू टेक द नेगेटिव साइन बिकॉज ऑलरेडी जो हमारी आइडेंटिटी है उसमें माइनस के साइन है। तो जहां आइडेंटिटी में नेगेटिव साइन है तो हमें जो टर्म्स लेनी है उसमें माइनस साइन नहीं लेना है। नाउ इट इज a क्यूब होल क्यूब ऑफ 2a माइनस b क्यूब यानी 3b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a दैट इज 2a इंटू b 3b
इंटू 2a माइनस 3b। तो ये हम आइडेंटिटी यूज किए। नाउ सॉल्व दिस। नाउ 2 का क्यूब करेंगे 8a क्यूब माइनस 3 3 9 3 27 b क्यूब। अब मल्टीप्लाई करिए कि प्लस माइनस माइनस 3 टू 6 6 3 18 ab इंटू 2a माइनस 3b। नाउ सॉल्व दिस 8a क्यूब माइनस 27 b क्यूब माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे हम ब्रैकेट खोलेंगे इसकी 18 टू 36 a स्क्वायर b। नाउ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 18 3 54 a b square. So this one is the expected form of second part. Now we start third part here. Third part is, देखिए थर्ड पार्ट में आइडेंटिटी कौन सी रहेगी है? इट इज होल स्क्वायर ऑफ a प्लस क्यूब है यहाँ पे, तो होल क्यूब ऑफ a प्लस b। बीच में पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव वाली आइडेंटिटी लगाएंगे यूजिंग होल क्यूब ऑफ a प्लस b is equal to a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. Now here a b की पहचान करिए। हमारे पास a की वैल्यू जो है आइडेंटिटी में चेक करिए। क्वेश्चन में 3/2x दे रखा है, सो 3/2x हो जाएगा। एंड b की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? दैट इज 1। b की जगह हमारे पास 1 है। पुट दीज वैल्यूज इन दिस आइडेंटिटी। पुट करेंगे तो यहां पे आ जाएगा हमारा 3/2x प्लस 1 इज इक्वल टू a क्यूब, यानी 3/2x का होल क्यूब प्लस होल क्यूब ऑफ 1 प्लस 3 इंटू a, दैट इज 3/2x इंटू 1 इंटू a प्लस b, दैट इज 3/2x प्लस 1। नाउ सॉल्व दिस। नाउ 27/8 x क्यूब प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9/2x इंटू 3/2x प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में स्टेप बाय स्टेप करें, कोई स्टेप मिस ना करें, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप करते हैं तो कोई ना कोई गलती जरूर कर देते हैं। सो अवॉइड दीज थिंग्स। नाउ 27/8 x क्यूब प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 27 2 2 4 x square plus 9/2x. So this one is the expanded form of part 3. And now last part, that is x minus 2/3 का whole cube. Now using identity, whole cube of a minus b, that is a cube minus b cube minus 3ab into a minus b. वेरी सिंपल। आइडेंटिटी आपने लिख ली है। अब नेगेटिव आइडेंटिटी है तो नेगेटिव वाली लिख दो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाली लिखिए। नाउ हियर a इज इक्वल टू a और b की पहचान करिए। दिस वन इज योर a एंड दिस वन इज योर b। सो हियर a इज इक्वल टू x एंड b इज इक्वल टू, देखिए नेगेटिव आइडेंटिटी है तो साइन नहीं लगाना आपने, क्योंकि आइडेंटिटी में ही माइनस है, दोनों में माइनस है, तो वी नीड ओनली b इज इक्वल टू 2/3। सो वी टेक हियर b इज इक्वल टू 2/3 and it is y, sorry, here 2/3y. So 2/3y. Now put these values in the identity. It is x minus 2/3y whole cube is equal to a cube, no x cube, minus b cube, no it is 2/3y का whole cube minus 3 into a into b, that is 2/3y into a minus b, that is x minus 2/3y. Now solve these terms. It is x cube minus 2 का क्यूब करेंगे हम 8 अपॉन 8 3 का क्यूब 27y क्यूब माइनस 3 से 3 काट दीजिए, तब तो कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करिए, एंड इट इज 2xy into में x minus 2/3y. Now solve this again. X cube minus 8/27y cube माइनस, ये माइनस का है स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव है, सो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा साइन, एंड -2 इसकी कोफिशिएंट कुछ नहीं है, सो x और x से मल्टीप्लाई करेंगे इट इज x²y। नाउ माइनस माइनस प्लस, अगली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे 2xy की, इससे तो प्लस हो जाएगा, एंड 2 2 4
upon 3xy square. So this one is the expanded form of fourth part of question number 6. Now students, in this video we solve these 3 questions, 4, 5 and 6, and I will attach an assignment based on these questions. So please solve them properly. Have a nice day. Thank you.